students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 7, which is about nutrition in animals. Okay, let's start the chapter. See students, first of all, we are having some introductory lines. So we are going to discuss about that. See, in contrast to plant, animals do not have the ability to create their own sustenance. Instead, they get their sustenance directly or indirectly from the plants. It is well known that all organisms, including humans, require sustenance in order to develop, repair and work properly. Animals' nutrition encompasses nutrient requirements, mode of food intake and its use in the body. So student, what they're saying कि अगर हम प्लांट्स के हिसाब से इनको देखें, प्लांट्स के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन किया जाए, तो प्लांट्स के पास एबिलिटी होती थी क्या अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, सो एनिमल्स डू नॉट हैव दिस एबिलिटी. एनिमल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने फूड के लिए, उस एनर्जी के लिए जो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड वर्क के लिए रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो ऑल दी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सभी क्या करते हैं, उनके जो सस्टेनेंस रिक्वायर्ड है डेवलप होने के लिए, रिपेयर होने के लिए, टू वर्क, they all get that energy from the plants only. Okay, so animal nutrition जो है वो nutrient requirements को एम्पास करता है, mode of food intake and its use in the body. So first of all we are going to discuss about modes of nutrition in animals, कि animals में कितने modes of nutrition होते हैं. So basically as we all know कि animals cannot prepare their own food. Animals अपना खाना खुद prepare नहीं कर सकते हैं, ये उस food पर dependent है जो कि plants prepare करते हैं. Hence they are known as heterotrophs. So heterotrophs क्या होते हैं? Heterotrophs वो organism है जो heterotrophic mode of nutrition को show करेंगे. That means what? कि ये अपने food को obtain करते हैं from the green plants or the animals that feed on plants. Okay, so based on the eating habits. So eating habits के basis पे हम heterotrophs को कुछ further types में classify करते हैं. Number 1 is herbivorous animals. So herbivorous animals वो हैं जो plants या फिर उनके plant parts को खाते हैं. Example cow, goat, deer, rabbit, horse, elephant, etc. These all are the examples of herbivorous animals. Second category of heterotrophic or the heterotrophs, that is carnivores और carnivorous animals. So carnivores animals वो होते हैं जो दूसरे animals के flesh यानी कि meat के ऊपर dependent होते हैं, meat को feed करते हैं. Example lion, tiger, panther, they all are the examples of carnivorous animals. Next we come to omnivorous animals. Omnivorous animals वो हैं जो कि both, that is plants and animals, दोनों पे ही feed करते हैं. Example crow, pig, men, cockroach, they all are examples of omnivorous animals. नेक्स्ट इज पैरासिटिक एनिमल्स. पैरासिटिक एनिमल्स को जो अपना फूड एंड शेल्टर है वो होस्ट से मिलता है. ये आपके एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं. एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? वो जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं एंड उनकी बॉडी के फ्लूइड, ब्लड या टिश्यू से अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करते हैं. ओके, एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट, ये आरबीसीज में सर्वाइव करता है. फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स ये लिवर या इंटेस्टाइन के अंदर रिसाइड करते हैं. Next is ectoparasite. Ectoparasites are such as ticks, mite, body loss, bed bugs. ये क्या है? किसी भी होस्ट बॉडी के सरफेस पे क्लिंग हो जाते हैं और उनके ब्लड को सक करके अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू सेप्रोफेगस. सेप्रोफेगस क्या होता है स्टूडेंट्स? सो एनिमल्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. किसी भी एनिमल या प्लांट के डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है? सेप्रोफेगस कहा जाता है. और बेसिकली जो डेड प्लांट एंड एनिमल का मैटर सॉइल में होता है उस पे ये सेप्रोफेगस एनिमल्स फीड करते हैं. एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स, दे आर सेप्रोफेगस एनिमल. नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? ये डेड एनिमल्स की बॉडी पे फीड करते हैं. एग्जाम्पल वल्चर, हाइना, जैकाल, दे ऑल आर योर स्कैवेंजर्स. Now next we come to process of nutrition. Nutritional process के बारे में हम डिस्कस करेंगे फाइनली. सो एनिमल्स टेक सॉलिड फूड. एनिमल्स क्या करते हैं? ये सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं एंड जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं. दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब इन सभी न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो एनिमल्स के थ्रू तभी किया जाएगा जब इनको हम क्या ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स. एंड ये सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स को फिर क्या इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उन्हें वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डिफरेंट बॉडी सेल. फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है. ओके, सो देयर आर बेसिकली 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल. दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड
egestion. So first of all, we have to discuss about nutrition in amoeba. Amoeba क्या है? Amoeba students एक unicellular organism है and usually कहाँ water या जो moist soil होती है वहाँ present होता है. इसकी कोई definite shape नहीं होती है. Now we have to discuss about its process of nutrition. सबसे पहले अमीबा में ingestion कैसे होता है? अमीबा अपने food को slowly engulf करता है. कैसे? अपने रैपिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको सीडोपोडिया कहा जाता है उसके थ्रू. सो ये इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अराउंड द फूड क्या करता है? रैप कर लेता है. एंड फिर सेल का वो पोर्शन जिसमें आपका फूड एंड लिटिल वाटर होता है उसको क्या कहा जाता है? होड वैक्यूल कहा जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज इंजेशन. सॉरी, इट शुड बी डाइजेशन. ओके, no, it's ingestion only. See, on coming in contact with the food, amoeba pushes finger-like pseudopodia, that is false food, around the food and engulfs. The food gets trapped in a food vacuole within the body. फिर उसके बाद क्या होता है? जैसे ही फूड के कांटेक्ट में अमीबा आता है, अमीबा अपने इन्हीं फिंगर-like pseudopodia को पुश करता है फूड के अराउंड एंड उन्हीं फिंगर-like पोजिशंस के थ्रू फूड को अपनी बॉडी के अंदर engulf कर लेता है एंड फिर वो फूड इनके फूड वेक्यूल में जाकर ट्रैप हो जाता है विद इन द बॉडी. नेक्स्ट इज डाइजेशन. अब फूड का डाइजेशन होता है इनसाइड द फूड वेक्यूल. जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अमीबा के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं इनटू द फूड वेक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. दैट इज नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है एंड फिर उसको एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अमीबा के लिए यूटिलाइज किया जाता है. द लास्ट इज इजेशन. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा अपने बॉडी के थ्रू किसी पे पॉइंट से एक्सपेल्ड आउट कर देता है बिकॉज अमीबा के पास कोई भी एनस जैसा पार्ट नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ओके, चलो. नाउ दिस वाज द न्यूट्रिशन मोड इन अमीबा एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स में क्या है? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है हम वो सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी शुड नो दैट ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस. दैट मीन्स व्हाट कि हम प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स को खा सकते हैं एज अ फूड एंड हम एनिमल्स के मीट यानी कि फ्लैश पे भी फीड कर सकते हैं. सी, सो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, शूट, फ्रूट्स एंड सीड. वी ऑल्सो हैव एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, मीट एंड मिल्क. ओके, अब जो फूड हम खाते हैं उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. सबसे पहले एक लॉन्ग कॉइल्ड फूड ट्यूब होती है जो कि दोनों ही तरफ से दोनों एंड पे ओपन होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होके हमारे एनस पे जाके एंड होता है. एनस इज अ काइंड ऑफ organ of our body through which we remove the waste products from our body. Okay, चलो. Now, अब एलिमेंट्री कैनाल जो है बहुत डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में क्या है डिवाइडेड है. नंबर 1 इज माउथ, सेकेंड इज एसोफेगस और वी कैन सी फूड पाइप ऑल्सो. थर्ड इज स्टमक, नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एलस. ये सभी कंपार्ट्स है जो मिलकर हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं. नेक्स्ट उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको स्टोर करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ ये जो ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये कुछ एंजाइम्स को भी प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं. ओके, क्या क्या ग्लैंड्स है? दैट इज लिवर, पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंजेक्शन ऑफ फूड कि फूड का कैसे हम इंजेक्शन करते हैं अपने बॉडी के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को जो इनटेक किया जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में वो माउथ के थ्रू किया जाता है. ओके, हम क्या करते हैं? फूड मॉजल्स को अपने माउथ के अंदर रखते हैं विद आवर हैंड्स एंड देन वी च्यू इट. हम उसको चबाते हैं अपने टीथ के थ्रू जो हमारे जॉज में प्रेजेंट होते हैं. उसको फूड को टेस्ट किया जाता है विद द टंग एंड जो सलाइवा हमारे माउथ में प्रिपेयर होता है उसके थ्रू उस फूड को मॉइस्ट किया जाता है सो दैट वी कैन इजीली एनगल्फ इट इनसाइड आवर बॉडी. नाउ टाइप्स ऑफ टीथ. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारी माउथ कैविटी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. दे आर इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स क्या है? इंसीजर्स टोटल 8 इन नंबर है, 4 ईच इन द अपर एंड लोअर जॉ. फ्लैट चिजल शेप एंड इसके थ्रू आप फूड को कट एंड बाइट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैनाइन. कैनाइन्स टोटल 4 होते हैं, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जॉ. ओके, ये काफी पॉइंटेड एंड शार्प होता है टू होल्ड, कट एंड टीयर देयर फूड. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स टोटल 8 होते हैं इन नंबर, 2 ऑन ईच साइड ऑफ द कैनाइन इन ईच जॉ. इन टीथ की काफी फ्लैट सरफेसेस होते हैं जो कि छोटे छोटे ग्रूव्स इनके अंदर होते हैं, ग्रूव्स एंड रिजेस, एंड प्रीमोलर्स के थ्रू फूड को क्रश एंड ग्राइंड किया जाता है.
Next is molars. Molars 12 in number, 3 on both side of the premolars in each jaw. Flat surface होता है so that they can easily grind the food. And molars का जो size है it is much larger as compared to premolars. Next we come to structure of a tooth. Tooth का structure discuss करेंगे. So tooth के दो main part होते हैं, that is root and crown. ओके हर एक टूथ जो है कुछ सॉकेट के अंदर फिक्स होता है जो कि हमारी जॉ बोन में होते हैं अपने लॉन्ग रूट्स के थ्रू. एंड हर एक टूथ के जो सेंटर में क्या होता है, पल्प होता है ब्लड एंड नर्व्स का. एंड इस पल्प के सराउंड में एक लेयर होती है विच इज द डेंटाइन लेयर. ओके टॉप ऑफ डेंटाइन का जो टॉप वाला पार्ट है वो टफ शील्ड से कवर्ड है, इनामल की शील्ड से. इनामल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी में. ओके एंड ये क्या करता है, इनामल एक वाइट शाइनी पार्ट बनाता है हमारे टूथ का विच इज कॉल्ड क्राउन. ठीक है. फिर इसके बाद इफ इट इज सेट इन फ्लैशी रिज ऑन द जॉ बोन कॉल्ड द गम्स. एंड जो हमारे टूथ है वो हमारे जॉ बोन के फ्लैशी रिज वाले पार्ट में फिक्स होता है जिनको हम गम्स कहते हैं. नेक्स्ट इनामल. आई टोल्ड यू इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इवन हार्डर देन बोन्स. हमारी बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है इनामल, जिसको डेंटाइल के थ्रू क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है. Now, next is tooth decay and oral hygiene. So first of all, we have to discuss about tooth decay. So healthy teeth are shining white. जो healthy teeth होंगे वो काफ़ी shining white होंगे, लेकिन अगर हम अपने teeth को clean नहीं करते हैं after eating, so हमारे tooth जो है या teeth जो है वो yellowish हो जाता है, because ये yellowish and sticky film जो है हमारे food particles के थ्रू फॉर्म होता है ना. फूड पार्टिकल्स सलाइवा एंड बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म होता है जिसको हम प्लाक कहते हैं. और ये प्लाक ही है जो हमारे टीथ के अराउंड क्या डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से हमारे टीथ येलोइश कलर के हो जाते हैं. जो शुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल्स हैं ये हमारे प्लाक में स्टिक हो जाते हैं. एंड जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया है वो शुगर एंड स्टार्च जो फूड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है इनटू एसिड. ये एसिड धीरे धीरे इनामल जो है सबसे हार्डेस्ट लेयर इसको डिसॉल्व करने लगता है एंड इट ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, जिसके थ्रू आपके टूथ में कैविटी होने लगती है एंड इट कॉजेज सीवियर टूथएक आल्सो. ओके द बिल्डअप ऑफ प्लाक. जो प्लाक का बिल्डअप होता है टूथ एंड गम के जंक्शन पॉइंट पे, उससे टूथ हमारे लूज होने लगते हैं जिससे हमारा टूथ लॉस हो जाता है. इसलिए चॉकलेट, स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है टूथ डिके एंड टूथ लॉस के लिए. सो वी शुड अवॉइड इट. Now next we come to care of teeth और oral hygiene. कैसे हम अपने teeth की केयर कर सकते हैं और we can take oral hygiene. So first of all avoid eating sticky and starchy food. जितना भी sticky and starchy food है आपको उसको खाना avoid करना है, like sweet, toffee, chocolate, ice cream and cold drinks. Okay, हमें अपने teeth को properly brush करना चाहिए every day in the morning and at night before going to bed. थर्ड, हमें अपने गम्स को जेंटली मसाज करना चाहिए विद ब्रश फ्रॉम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड. एंड इंश्योर नो फूड पार्टिकल्स. जब हम ब्रश करते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में ना बच जाए. ओके ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या सेल्फ क्लीनिंग फूड या रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए, लाइक कैरेट, रेडिश, कैबेज, कुकुम्बर एंड फ्रूट्स, सो दैट दे हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आवर टीथ. Now there's a difference table between milk teeth and permanent teeth. So milk teeth जो है हमारे around age of 6 months से grow करने लगते हैं and permanent teeth हमारे 6 to 8 years of age में आते हैं. Milk teeth total 20 होते हैं नंबर में and permanent teeth are 32 in number. Milk teeth में molar teeth नहीं होते हैं and permanent teeth में हर एक jaw में 6 molar teeth होते हैं. मिल्क टीथ जो है ये फॉल ऑफ हो जाते हैं और इनको कौन रिप्लेस करता है, हमारी जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ है वो. लेकिन परमानेंट टीथ जो है वंस फॉल ऑफ दे कैन नॉट बी रिप्लेस. एक बार अगर ये आपके टूट के गिर जाते हैं तो ये रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं. दे आर द परमानेंट टीथ. नाउ द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड ऑर्गन इन आवर माउथ इज टंग. टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके थ्रू हम अपने फूड को माउथ के अंदर मूव करते हैं वाइल चुइंग. ओके एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड. फूड को अंदर swallow करने में भी टंग हेल्पफुल होती है. टंग में टेस्ट बड्स होता है जिसके थ्रू आप किसी भी फूड के टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, लाइक स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर. द फंक्शंस ऑफ टंग, क्या क्या टंग के फंक्शंस है. नंबर 1, टंग के थ्रू हम अपने फूड को टेस्ट कर सकते हैं. टंग सलाइवा सीक्रेट करता है जिसको हम अपने फूड के साथ मिक्स कर सकते हैं वाइल चुइंग. एंड टंग के थ्रू हम अपने फूड को क्या टीथ के टूवर्ड्स पुश करते हैं फॉर चुइंग. नेक्स्ट, टंग फूड को स्वलो करने में हेल्प करती है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग. नाउ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ. सो माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो जो हमारे फूड का डाइजेशन है स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स इन आवर माउथ ओनली. ओके माउथ में फूड को पहले च्यू किया जाता है, मेस्टिकेट किया जाता है बाय टीथ इनटू अ फाइन पेस्ट. ओके फिर
जो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा रिलीज करते हैं हमारे माउथ में। सलाइवा एक विशियस ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसके अंदर मेनली वाटर, सॉल्ट एंड म्यूसिन होता है। सलाइवा हमारे फूड को मॉइस्ट करता है एंड जो च्यूड फूड है हमारा उसको स्लिपरी बनाता है, सो दैट हम उसको ईजिली अपने अंदर की तरफ फूड पाइप के टूवर्ड्स क्या कर सके, उसको एनगल्फ कर सके। ओके, सो दिस हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड easily। अब स्टूडेंट सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, एंड सलाइवरी अमाइलेज का काम है जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको माल्टोज में डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट, एसोफेगस और फूड पाइप। तो माउथ से अब जो फूड है वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता है एसोफेगस से फूड पाइप में, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। फूड धीरे धीरे एसोफेगस पे स्लाइड डाउन करता है एक वेव लाइक मोशन में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि हमारा फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से फूड एक वेवी फॉर्म में नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होता है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप की मसल्स का, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ओके, एंड कोई भी डाइजेशन एसोफेगस के अंदर नहीं होता है, सिर्फ मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्टमक। अब एसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है एंड फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक एक जे शेप थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग है जो कि डायफ्राम के नीचे होता है, एंड जो स्टमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, उसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं। ओके, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज म्यूकस एंड थर्ड इज डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जब खाना हमारे फूड जो है स्टमक में जब जाता है वो पहले 2 to 4 आवर्स के लिए वहाँ पे स्टे करता है एंड उसके बाद हाफ डाइजेस्ट हो जाता है, हाफ डाइजेस्ट होकर थिन पेस्ट बन जाता है जिसको काइम कहा जाता है। एंड जो स्टमक में जो फूड है उसको चर्न करके क्या उसके ऊपर जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारा स्टमक सीक्रेट करता है उसको अपॉन किया जाता है। सो डाइजेस्टिव जूसेस कौन सिक्रेट करता है? हमारे जो स्टमक की वॉल्स है वो सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर एक पेप्सिन नाम का भी एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन रिएक्ट ऑन इट। एंड उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फंक्शन है कि अगर आपके फूड के अंदर कुछ बैक्टीरियाज है, ओके, दैट कुड हैव एंटर्ड विद द फूड, उनको किल करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डैमेजिंग इफेक्ट से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टमक। अब खाना स्टमक से जो है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है जहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो नाउ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर का होता है लेंथ में, ओके, एंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। प्लस उसके बाद जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है इट ऑल्सो कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। सबसे पहले आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है जो रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज विच आर योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ओनली। डाइजेस्टिव जूसेस जो कि लिवर सिक्रेट करता है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। व्हेन द लिक्विफाइड काइम, जब आपका लिक्विफाइड जो काइम है वी कैन से द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टमक से रिसीव किया जाता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तब जो बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या बाकी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, ये सभी क्या करते हैं, जो खाने के अंदर अब कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं उनको खुद से ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर क्या है? लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड जस्ट हमारी राइट साइड में डायफ्राम के नीचे राइट हैंड साइड लोकेटेड है। लिवर अराउंड 2 किलोग्राम इन वेट होता है एंड ये एक बाइल जूस प्रिपेयर करता है इसके सेल जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जैसे फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, बाइल जो है वो लिवर से सिक्रेट होता है एंड इटसेल्फ जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक पिंक कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड होते हैं जो कि 2 लीटर्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस ईच डे प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो एंजाइम है वो जितने भी फूड के बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा प्रोसेस है जहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुए हैं वो सभी एब्जॉर्ब किए जाते हैं।
ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको विलाई कहा जाता है, एंड अबाउट 5 to 6 मिलियन विलाई होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। हर एक विलेज का एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स के साथ, एंड विलाई जो है वो क्या एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है सो दैट जो डाइजेस्टेड फूड है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक ब्रॉड ट्यूब है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द स्टमक। ओके, एंड बाइल मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है फूड में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो वाटर या कुछ सॉल्ट है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। Now assimilation of absorbed nutrients, okay, अब जो absorbed nutrients है वो हमारी बॉडी से कहाँ ब्लड वेसल्स में पास होते हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द ब्लड। ओके, चलो, बॉडी सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम फिर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करते हैं जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। ओके, नाउ द फ्यूचर ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इज एज फॉलोज, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है बाय द बॉडी। ओके, इसको ऑक्सीडाइज करता है सो दैट इसमें से एनर्जी रिलीज हो इनसाइड द सेल। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, अगर ज़्यादा ग्लूकोज है बॉडी में बन के वो मसल्स में हमारा स्टोर हो जाता है या फिर लिवर के सेल्स में स्टोर हो जाता है एज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के बाद बनते हैं, इसके थ्रू हमारे सेल्स के न्यू लिविंग मटेरियल को बनाया जाता है। एंड फैट्स जो है वो हमारे फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज ईजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट्स, उसको हम एलएस के थ्रू पुश आउट कर देते हैं जिसको हम ईजेशन और डिफिकेशन कहा जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे एज अ रेसिड्यू कहाँ वेक्टम में एंटर करता है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं विच इज कॉल्ड फीसिस। ओके, द सॉलिड वेस्ट फूड विच इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड फीसिस। ओके, नाउ The next topic is digestion of food in ruminants. अब ruminants क्या होते हैं और उनमें कैसे फूड का डाइजेशन होता है, we have to discuss about that. See, grass eating animals, जितने भी grass eating animals है like cow, buffalo, goat, sheep, deer, ये सभी ruminants होते हैं because इनके stomach का एक part है जिसको हम rumen कहते हैं, वो specialized होता है जो कि half chewed food को store करता है। Okay, see. जो ruminants के stomach है उसमें 4 chambers होते हैं, that is rumen, reticulum, omasum and abomasum. ओके, rumen जो है वो सबसे बड़ा चैम्बर है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन द ruminants. ruminants क्या करता है, सबसे पहले अपने फूड को swallow कर लेता है, निगल जाता है, या तो वो पार्शियली या हाफ च्यूड फूड होता है, बेसिकली ग्रास खाते ruminants, उनको वो क्विकली swallow कर लेते हैं। फिर जो सलाइवा है इनके माउथ में उस हाफ च्यूड फूड के साथ मिक्स होता है एंड कहाँ rumen में जाके स्टोर हो जाता है सारा फूड। फिर यहाँ से जो फूड है उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा, एंड जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। फिर ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, कड बोलते हैं। उसके बाद जब ये ruminants सिट एंड रिलैक्स, इनके आराम से बैठे रिलैक्स कर रहे हैं, ये जो कड है रेटिकुलम में से ये वापस इनके माउथ कैविटी में आता है ना, छोटे छोटे लम्स में, एंड दोबारा से ये एनिमल्स इनको च्यू करते हैं। इसे कहते हैं च्यूइंग द कड और रुमिनेशन। ओके, एंड जब फूड को कंप्लीटली च्यू कर लिया जाता है वो डायरेक्टली फिर ओमेजम में जाता है जहां फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड फूड को फिर एबोमेजम में पुश करते हैं जहां जो कि इनका ट्रू स्टमक होता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, बिकॉज प्लांट फूड के अंदर सेल्यूलोज जो है विच इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड ruminants में सेल्यूलोज जो है वो एक स्पेशल सैक में डाइजेस्ट होता है जो कि इनके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, सीगसम। ठीक है, चलो ये क्या करता है, जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, सो द चैप्टर्स explanation has been completed, and now we come to the exercise portion. So first of all, we are having what the objective type question, that is tick the correct option. Number 1, breaking down of complex insoluble organic compound into simpler soluble molecule. जो complex insoluble organic compounds का breakdown होता है into simpler soluble molecule, that is called digestion, which is option number A. सेकेंड, फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, उसको क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट, दे हैव गिवन यू सम रॉन्ग ऑप्शंस, दैट इज काइल, काइंग, दिस इज CHIME, but the answer is CHYNE. So first of all you have to correct this option, and then finally the correct option is option number 3.
सीडोपोडिया हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड. सीडोपोडिया क्या करता है? फूड के इंजेक्शन में हेल्प करता है. किस ऑर्गेनिज्म में? अमीबा में. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. सबसे बड़ा ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में है दैट इज लिवर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन वेयर दे हैव रिटन एड्रीनल ग्लैंड. जस्ट कट इट एंड राइट लिवर ओवर देयर एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच कार्बोनेट्स कैन द ruminants नॉट डाइजेस्ट easily. ruminants कौन से कार्बोनेट को easily डाइजेस्ट नहीं कर सकते? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विच इज स्टार्च. Now, fill in the blanks. अब हमें fill in the blanks को complete करना है. Number 1, food is one of our dash need. Food एक क्या है? हमारी basic need. Next is green plants are the dash sources. Green plants कैसे sources हैं? Primary sources हैं food के. Next is dash is also obtained from flowers. Flowers से क्या obtain किया जाता है? Nectar भी obtain किया जाता है. Tea and coffee are. Tea and coffee क्या है? एक तरीके के beverages है. Okay, now next we come to answer in short and the first question is how does amoeba capture food? amoeba कैसे food को capture करता है? So amoeba की जो body surface है वो क्या extend हो जाते हैं into some finger like projection which is called pseudopodia and pseudopodia के through ही amoeba अपने food को engulf करता है into its food vector for the further digestion. Okay, now next, what is the role of hydrochloric acid in the stomach? Stomach में hydrochloric acid का क्या role है? So first of all, hydrochloric acid एक acidic medium provide करता है for the pepsin enzyme to act on it, and plus it also kills the bacteria or some microorganism which might have entered into our body through food. Next, how does bile juice help in digestion? Bile juice is secreted by the largest gland of our body, that is liver, and it also helps in the digestion of fat present in the food. Next, name the part of ruminant stomach which of these represent the true stomach. कौन कौन से part है ruminant stomach के? So see, this is rumen, reticulum, omasum and abomasum, and the true stomach होता है that is your abomasum. Okay, चलो. Now, next is what are saprophagus animals? Give their example. Saprophagus animals वो है the animals which feed on the dead and decaying plant and animals matter in the soil. Example, earthworms. Okay, chalo. Now, next is answer the following questions in detail. Number 1 is there's the steps involved in the process of nutrition. Explain them with reference to amoeba. So कौन कौन से प्रोसेस है जो स्टेप्स है जो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है? दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन. और आपको इसको एक्सप्लेन करना है किसके थ्रू? अमीबा के रेफरेंस के थ्रू. सो अमीबा में इंजेशन जो है वो सीडोपोडियास के थ्रू होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसके थ्रू अमीबा फूड को अपने सराउंडिंग से अपनी बॉडी के अंदर इनकल्फ करता है. फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड वेक्टर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या उस फूड के अंदर एक्ट करते हैं एंड देन द डाइजेशन विच इज कॉल्ड डाइजेशन प्रोसेस. उसके बाद जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है जिसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. फिर उनको डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स और फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स, दैट इज एसिमिलेशन. एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट बचता है उसको अमीबा अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से रिमूव कर देता है बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी एनएस. ओके, एंड दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस. Okay, next, define digestion. Digestion क्या है? The process of breakdown of the complex molecules of food into the simpler soluble form, that is called digestion. Okay, describe the role of saliva, bile juice and pancreatic juice in digestion. Saliva का क्या role है? Saliva basically पहले तो food को moist करता है so that we can easily swallow it, and प्लस इसके अंदर एक एंजाइम होता है विच इसको सलाइवरी अमाइलेज जो कि हमारे फूड के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट इज बाइल जूस. बाइल जूस का क्या रोल है? बाइल जूस का काम है कि ये जो फूड के अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स है उनको डाइजेस्ट करता है इनटू सिंपलर फॉर्म. एंड देन पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? पेनक्रियाटिक जूस जो है फूड के अंदर जो बाकी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनके कंप्लीट डाइजेशन में हेल्पफुल करते हैं. नेक्स्ट इज गिव 4 फंक्शंस ऑफ स्टमक. स्टमक के आपको 4 फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो स्टमक है ये जे शेप थिक वॉल मस्कुलर बैग है. इसकी जो लाइनिंग होती है उनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ओके, सो सबसे पहले स्टमक जो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है जिसके अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम है. एंड पेप्सिन जो है फूड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि स्टमक ही सीक्रेट करता है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसमें पेप्सिन एंजाइम रिएक्ट कर सके. एंड उसके साथ ये जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे फूड के साथ हो सकता है एंटर कर गए हों
उनको किल करता है। नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम डैमेजिंग द स्टमक। ओके, एंड यहाँ पे स्टमक में क्या होता है? फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? How small intestine is best adapted for absorption of digested food? So small intestine के अंदर numerous tiny finger-like projections होते हैं जिनको हम villi कहते हैं। Okay, around 5 to 6 million villi total small intestine में present है, जो कि food को absorb करने में helpful होते हैं। Plus इनमें क्या होता है? इन हर एक villi के अंदर बहुत सारी blood vessels होती हैं and villi जो है हमारे absorption के surface area को increase करते हैं and helps in the absorption of food and then transport that nutrients of the food to the different body parts. How many types of teeth are found in men? कितने types के teeth है? 4. Okay, that is incisors, canine, premolars and molars. आपको इनके functions describe करने हैं. How can you take care of your teeth? That we have discussed. Okay, so you can copy it from there. Okay, so the chapter is completed. We have completed the exercise portion and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.